everyone. So today we are going to see stickers in Paint 3D application. So stickers is a very interesting tool in Paint 3D. You can also make your own stickers if you know about Adobe Illustrator, Photoshop. So you can also make your own stickers. Now in this tutorial we are going to see how we can make the images as a sticker and use in Paint 3D application. So here I'm going to click on to the 3D library for this, and here you can see I have typed envelope in the search bar, and this is the envelope which is in 3D. So it is in simple form, no color, nothing is in this envelope. So I'm going to use stickers in this envelope. So click on to the sticker. Here you have an option that Paint 3D application provided its own sticker and some texture sticker, and now have here also have an option to make your own stickers by downloading the images. So now I'm going to click on to add sticker, and here I have downloaded an image from the Google, or you can also make your own image with the help of Adobe Illustrator or the Photoshop. So I'm click on it. Now click on to the magic select. Next, here you can see I want to add this part also, but by default Paint application prompt us कि वो यहाँ से delete कर रहा है इस part को, but I want to be this part. So I'm going to click on to add and add this part also. I don't want to cut it out that part. So click on to done. Then I got a sticker here. You can also adjust the sticker's opacity. Okay, again I have take another sticker also. Now again click on it, and next I want to remove this part now from this sticker. Then done. Okay, then click on to the stickers. So we have lots of stickers here, right? Now I'm going to click this sticker and cover it, this envelope, with this sticker like this. See, and then click on it. Again I'm going to take this. मैंने एक ही इमेज से 3-4 स्टिकर्स को यूज कर लिया. Then okay, after that अब मैंने यहाँ से सी कितना अच्छा लुक आया है कि पूरा का पूरा स्टिकर्स हमारे जो हमने बनाए वो कवर हो गए. सो एक एनवलप में हमने किस तरीके से स्टिकर का यूज किया. नाउ सी, and then click on to canvas and off. Go to the effects, use the lights, and then again back to this. You can also use this lights also for representing your envelope. Now I am going to show you another example. We have seen an example of envelope where we used sticker. Now we are going to see another example. I'm going to click on to the 3D library, and then in the search bar I'm going to type shopping bag, and then now the color of shopping bag is this. अब हमने कई बार क्या देखा होता है कि शॉपिंग बैग्स पे बहुत डिफरेंट जब हम कोई मॉकअप तैयार करके उसमें कलर्स, हम जो बैनर्स तैयार करते हैं, जो उसके लिए जो
जो पेपर तैयार करते हैं वो कैसे होना चाहिए, तो वो पेपर हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की मदद से। हम एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, पेपर्स वगैरह तैयार करने के लिए। तो वो इस बैग पे किस तरीके से आना चाहिए, अभी तो हमने एक बेसिक ले लिया है, और यही चीज़ अगर हम क्या करते हैं कि ब्लेंडर पे ले लेते हैं तो ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, तो वो एक हायर वर्जन हो जाता कि किस तरीके से हम स्टिकर्स का यूज़ करते हैं और ब्लेंडर पे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग स्टिकर्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अभी पूरा एक ही पार्ट है बैग का, तो हमें पूरा एक स्टिकर यूज़ करना पड़ेगा। सो हेयर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन टू द स्टिकर and click on to add sticker. Here I have my own designs which I have designed in the Adobe Illustrator. So I'm going to take this. See, this is made in Adobe Illustrator, and now I'm going to make this in the sticker form. So click on to the magic sticker, magic select, and then next add. I want to add all these parts and then click done. So here you can see I'm going to use this and use it here, and again I'm going to take it and again, अब यहाँ से हमारा रह गया है तो अगेन क्लिक ऑन टू द स्टिकर। तो जो हम स्टिकर बना चुके हैं हमारा आ चुका है यहाँ, एंड कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर फिर हम स्टिकर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम फिर से ले लेते हैं अपने स्टिकर्स कुछ इस तरीके से, and then again click onto the sticker and यहाँ पे फिर से हमने ले लिया and then again see, इस तरीके से कितना सुंदर शॉपिंग बैग लग रहा है ना। तो इस तरीके से हमने स्टिकर का यूज़ करके अपना खुद का एक स्टिकर बनाया, अब जो इमेजेस हम डिज़ाइन करते हैं पैटर्न्स उनका, एंड देन इसमें हमने यूज़ कर लिया। अब ये तो हो गया एक पैटर्न। अब मैं एक काम करती हूँ 3D लाइब्रेरी में जाके यहाँ से एक और पैटर्न ले लेती हूँ, दैट इज ग्लास। ड्रिंकिंग ग्लास, तो मैंने ड्रिंकिंग ग्लास ले लिया। आप ब्लेंडर में मॉडलिंग कर सकते हो इस 3D की, यहाँ पे हमें 3D लाइब्रेरी में मिल जा रहे हैं, हम अपने हिसाब से वहाँ पर बना सकते हैं। तो वो हायर वर्जन हो गया। एक बेसिक लेवल पे जब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें कैटलॉग शो करना पड़ता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। आप अपने डिज़ाइंस एडोब इलस्ट्रेटर में बना के हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। अब स्टिकर में गए, हाउ कूल इज दैट। नाउ आई वांट टू सेव इट, क्लिक ऑन टू द सेव एज, click on to video, see how beautiful 3D object, or if you want some extended features then you can import it into Blender. And now we are going to see another example in Paint 3D, how we can wrap the box with the help of the sticker, and the sticker is downloaded by the Google, right? That means I'm going to download the image from the Google and then make that image into the sticker and wrap a box with that sticker. Okay, so here I'm going to, now I am going to show you another example. We have seen an example of envelope where we used sticker. Now we are going to see another example. I'm going to click onto the 3D library and then in the search bar
in the search bar I'm going to type shopping. Now the color of shopping bag is this. अब हमने कई बार क्या देखा होता है कि शॉपिंग बैग्स पे बहुत डिफरेंट जब हम कोई मॉकअप तैयार करके उसमें कलर्स, हम जो बैनर्स तैयार करते हैं, जो उसके लिए जो पेपर तैयार करते हैं वो कैसे होना चाहिए, तो वो पेपर हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की मदद से। हम एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, पेपर्स वगैरह तैयार करने के लिए। तो वो इस बैग पे किस तरीके से आना चाहिए, अभी तो हमने एक बेसिक ले लिया है, और यही चीज़ अगर हम क्या करते हैं कि ब्लेंडर पे ले लेते हैं तो ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, तो वो एक हायर वर्जन हो जाता कि किस तरीके से हम स्टिकर्स का यूज़ करते हैं और ब्लेंडर पे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग स्टिकर्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अभी पूरा एक ही पार्ट है बैग का, तो हमें पूरा एक स्टिकर यूज़ करना पड़ेगा। सो हेयर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन टू द स्टिकर and click on to add sticker. Here I have my own designs which I have designed in the Adobe Illustrator. So I'm going to take this. See, this is made in Adobe Illustrator, and now I'm going to make this in the sticker form. So click on to the magic sticker, magic select, and then next add. I want to add all these parts and then click done. So here you can see I'm going to use this and use it here. अब यहाँ से हमारा रह गया है, तो अगेन क्लिक ऑन टू द स्टिकर। तो जो हम स्टिकर बना चुके हैं हमारा आ चुका है यहाँ, एंड कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर फिर हम स्टिकर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम फिर से ले लेते हैं अपने स्टिकर्स कुछ इस तरीके से, and then again click on to the sticker and यहाँ पे फिर से हमने ले लिया and then again see इस तरीके से कितना सुंदर शॉपिंग बैग लग रहा है ना। तो इस तरीके से हमने स्टिकर का यूज़ करके अपना खुद का एक स्टिकर बनाया, अब जो इमेजेस हम डिज़ाइन करते हैं पैटर्न्स उनका, एंड देन इसमें हमने यूज़ कर लिया। अब ये तो हो गया एक पैटर्न। अब मैं एक काम करती हूँ, 3D लाइब्रेरी में जाके यहाँ से एक और पैटर्न ले लेती हूँ, दैट इज ग्लास। ड्रिंकिंग ग्लास। तो मैंने ड्रिंकिंग ग्लास ले लिया। आप ब्लेंडर में मॉडलिंग कर सकते हो इस 3D की, यहाँ पे हमें 3D लाइब्रेरी में मिल जा रहे हैं, हम अपने हिसाब से वहाँ पर बना सकते हैं। तो वो हायर वर्जन हो गया। एक बेसिक लेवल पे जब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें कैटलॉग शो करना पड़ता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। आप अपने डिज़ाइंस एडोब इलस्ट्रेटर में बना के डिज़ाइन कर सकते हैं। अब स्टिकर में गए, सी तो हमने ये स्टिकर से बना लिया। हम एक बार और स्टिकर लेते हैं और यहाँ पे फिर से एक स्टिकर में डाल देते हैं एंड देन ओके। सो हाउ कूल इज दैट। इस तरीके से हम देखते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये ग्लास। अब ये हमारे पास तैयार हो गए मॉकअप्स हमारे कि किस तरीके से दिखना चाहिए इस ग्लास को। अभी यहाँ से थोड़ा सा रह गया है। अगेन क्लिक ऑन टू स्टिकर, टेक इट आउट एंड देन अगेन मेक इट सी। अब हम जाएंगे कैनवास पे और कैनवास ऑफ कर देते हैं। तो हमारे ये जो मॉकअप हमने तैयार करे ये बन गए, जो कि 3D में है। अब हम इफेक्ट्स पे जाते हैं और यहाँ पे सेट कर लेते हैं ब्राइटनेस, लाइट्स। अगर हम चाहें तो उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड इस ग्लास को इस तरीके से और 3D में शो करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सी
ये हमारा कैरी बैग बन गया और ये हमारा ग्लास की मॉडलिंग हो गई। तो आप सुंदर सुंदर पैटर्न्स बना सकते हो एडोब इलस्ट्रेटर में एंड देन यूज कर सकते हो। So thank you. Please stay safe and don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.